this session. And on 6th of August 2020, request all the members to mute their mic. नहीं खा रहे ना हम लोग, तो अभी तो क्यों मुंह जल रहा है राइस का? So on 6th of August 2020, RBI come up with two one-time restructuring circular. One circular talks about one-time restructuring, wherein there will be no downgrade of asset into an NPA, and this circular states that any borrower wherein the debt size is more than 25 crores, those borrowers are being covered under this circular. And in another circular, it's a very MSME centric circular, wherein also one-time restructuring is permissible without downgrading the account, and therein the aggregate debt size of the company should be 25 crores or less than 25 crores. So first of all, I would like to go forward with the circular wherein we've been dealing with corporate loans wherein the debt size is more than 25 crores. So if you talk about, and the circular name is Resolution Framework for COVID-19 Related Stress, dated 6th August 2020. So if you talk about applicability, when you talk about applicability means upon whom it is going to be applicable. So these are the institutions, financial institutions who can restructure, one-time restructure without downgrading the account of the corporate borrower or as well as individuals. So all commercial banks, including small finance bank, local area bank, and regional rural banks, all primary urban cooperative banks, state cooperative banks, district central cooperative banks, all India financial institutions, all non-banking financial companies, including housing finance companies. So these are the financial institutions who can restructure borrower's account without downgrading into NPA. So basically there are two terminology which we need to be very acquainted with in order to understand this circular in a crystal way. One is invocation date, another is reference date. So when we talk about invocation date is the date of invocation. The date of invocation shall be the date on which both the borrower and lending institutions have agreed to proceed with a resolution plan under this framework. So invocation date in layman language is the date upon which or on which you submit the request for one-time restructuring along with a concrete resolution plan. Reference date is a date when the outstanding amount of debt that may be considered for resolution shall be 1st of March 2020. So 1st of March 2020 is a reference date, or it's a cutoff date wherein some specific parameters need to be complied with in order to be eligible under one-time restructuring scheme that we are going to discuss in the later stage.
Now the question arises, who are the what type of transactions or persons are not being covered under this one-time restructuring scheme? Following categories of borrowers or credit facility shall not be eligible for a resolution plan under this framework. MSME borrowers whose aggregate exposure to lending institution collectively is INR 25 crore or less as on March 2020. So there is a separate RBI circular for this, which cover MSME borrowers. So under the circular, they are not being covered. Next category is farm credit. Farm credit means loan to farmers in any manner. Another is loan to primary agriculture credit societies, farmers service societies, and large size Adivasi multi-purpose societies for on-lending to agriculture. Exposures of lending institution to financial service providers. So when we talk about service providers, it includes NBFC also. So NBFCs don't have the privilege to get their loans restructured without downgrading the account. Exposures of lending institutions to central and state governments, local government bodies, municipal corporation, and body corporates established by an act of parliament and state legislature. Exposures of housing finance companies wherein the account has been rescheduled in terms of para 21 ZC Roman 2 of the master circular. Housing finance companies after 1st March 2020, unless a resolution plan under this framework has been invoked by other lending institutions. So any housing finance company wherein the the account has been rescheduled after 1st of March 2020, then it is being excluded out of this circular. Now so we talk about, Darshan, sorry, can you give us a little clarity on when you're talking about housing finance company where the account has been rescheduled? Reschedulement would mean the moratorium period that these guys have taken or any delay default, what we are talking about here? Reschedule means it's a, when we talk about reschedulement means there is a shifting or there is a change in repayment schedule. There's a change in repayment schedule. Okay. So as compared to the existing repayment schedule. ठीक है, तो वो आप बोल रहे हो कि 1 मार्च 2020 के बाद उसमें कुछ भी रीस्केड्यूलमेंट हुआ नहीं होना चाहिए अभी तक, only then these guys would qualify on that. Yes. Okay, thank you. तो कोविड वाला जो मोरेटोरियम था उसमें भी तो रीशेड्यूलमेंट तो हुआ ही है. Will that count as a reschedulement? अरे रीशेड्यूल में मतलब क्या होता है? नहीं, आप बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स को डेफर किया या मेरा खाली एक क्वेश्चन है, रीशेड्यूलमेंट मतलब क्या होता है? मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जो लोन ड्यू था, इंस्टॉलमेंट ड्यू था अप्रैल में, अगर उसको हम जाके सितंबर में कर रहे हैं तो शेड्यूल में चेंज तो है. वो तो सबने किया है. हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि will it be considered in this or not? यहाँ पे क्या लिखा है बाद में, ऊपर में मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर इनका जो अपना एक सर्कुलर है उसके टर्म्स में अगर कोई रीशेड्यूलमेंट हुआ है तो ओके. जो अपना आरबीआई का मार्च में निकला था वो तो सबके लिए एप्लीकेबल था. अच्छा सुदर्शन भाई, आपका यहाँ पे क्वेरी है मेरा. आपका जैसे इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि अकाउंट शुड रिमेन स्टैंडर्ड टिल द डेट ऑफ इन्वोकेशन. मैं अभी तक आया नहीं उसमें. ओके, मैं आता हूँ एक बार, मैं बता दूंगा. तो यार जो भी क्वेरी होगा अपने कर लेंगे रिजॉल्व. ठीक है. अभी क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एक्सक्लूशन बता दिए, एप्लीकेबिलिटी बता दिए. अब एलिजिबिलिटी को, हु आर एलिजिबल फॉर दिस.
अब इसमें क्या है, अकाउंट्स विच आर इन डिफॉल्ट फॉर नॉट मोर देन 30 days as of 1st March 2020 will be eligible for such restructuring. Further, the account should continue to remain standard till the date of invocation. Accounts in default for more than 30 days as on 1st March 2020 shall be governed by June 2019 RBI circular. तो अभी यहाँ पर SMA 0, SMA 1 और SMA 2 की बात नहीं हो रही है. Please don't get it confused with SMA 0. और you should not say कि मेरा 30 days is equivalent to SMA 0. क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 30 days overdue नहीं होना चाहिए. 30 days से ऊपर overdue नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपका जो SMA वाला जो चीज होता है वो मंथली बेसिस पे होता है. अगर यहाँ पर तो 30 डेज की बात कर रहे हैं, 30 डेज में आपका SMA 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर वो 30 डेज ओवरड्यू हो सकता है. तो इसलिए प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज विद SMA 0. इट्स क्लियरली रिटन दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज ओवरड्यू. ठीक है. नेक्स्ट है, एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय KV कामत विल बी सेट अप, who is going to make recommendation to the RBI on the required financial parameters along with a sector specific benchmarks to be factored into each resolution plan. The parameters shall entirely covers aspects related to leverage, liquidity, debt serviceability, etc. अब इसमें क्या है कि एक्सपर्ट कमिटी जो कि ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी है, मगर उसके बाद हो चुकी है, कल हो चुकी थी. अब एक्सपर्ट कमेटी एक सेटअप होगी जो ये बताएगी आरबीआई को कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, बेंचमार्क्स होने चाहिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू ascertain the viability of the resolution plan. This expert committee will also validate the resolution plan for accounts with aggregate debt of rupees 1500 crores and above. अब इसमें क्या है कि 1500 crores के ऊपर अगर कोई भी डेट होता है, 1500 crores या 1500 crores के ऊपर, तो एक्सपर्ट कमिटी उसको वैलिडेट करेगी, विल आल्सो वैलिडेट द रिजोल्यूशन प्लान. अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट में आप क्या देखोगे, एक तो ये बोला है कि एक्सपर्ट कमिटी विल आल्सो वैलिडेट द रिजोल्यूशन प्लान फॉर अकाउंट्स विद एग्रीगेट डेट ऑफ रुपीज 1500 crores एंड अबव. बाद में इन लोग क्या बोलते हैं, द एक्सपर्ट कमिटी शैल चेक एंड वेरीफाई दैट ऑल द प्रोसेसेस हैव बीन फॉलोड बाय द पार्टीज concerned as desired without interfering with the commercial judgment exercised by the lenders. 1500 करोड़ के जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, 1500 करोड़ तक का जो डेट होगा उसमें एक इंटरनल बैंक टू बैंक पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी का अडेरेंस अपने को करना होगा. और 1500 करोड़ के ऊपर जो डेट का रिस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसमें एक्सपर्ट कमिटी ये इंश्योर करेगी कि ऑल द प्रोसेसेस which need to be complied with, that has been complied and each and every processes has been followed, but they are not going to intervene with the commercial judgment of the lenders कि आज इसको इतना एडिशनल लोन क्यों दिया जा रहा है, या इसको इतना साल का लोन क्यों दिया जा रहा है, या जो अगर प्रोसेसेस में जो भी है कंप्लाइड, वो कंप्लाइड हुआ कि नहीं हुआ वही देखेगी. कमर्शियल विजडम में नहीं देखेगी कि आज इसको 9% में लोन क्यों दिया जा रहा है, इसका पहले 12% था, तो वो सब नहीं देखेगी. फॉर केसेस where the aggregate debt is over 100 crores, the lending institution will have to obtain an independent credit evaluation for the resolution plan from a recognized क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अगर आपने जून 2019 वाला सर्कुलर पढ़ा था तो वहां पर ये था कि 100 करोड़ के ऊपर और 500 करोड़ के नीचे होगा तो एक रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करनी है, और 500 करोड़ के ऊपर होगा तो 2 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवानी है. और वहां पर RP4 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्राइटेरिया भी उन्होंने डाल दिया था.
मगर यहाँ पर अभी उन्होंने ये बोला है सिर्फ कि 100 करोड़ के ऊपर अगर आपका डेट है तो आपको एक रेटिंग एजेंसी से अपने प्लान को इवैल्यूएट करवाना है। उसमें अभी तक RP4 वाली बात उन्होंने नहीं बोली है। केवी कामत जी की जो एक्सपर्ट कमिटी अभी फॉर्म्ड हुई है, इट माइट हैपन दैट दे कम अप विद सच अ बेंचमार्क की RP4 की रेटिंग होनी चाहिए। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट एक्सपर्ट कमिटी आउटकम्स विच दे नीड टू, जो कि उनको लेके आना होगा 30 दिन के अंदर। कमिटी फॉर्म के बाद 30 दिन के अंदर उनको लेके आना होगा। तो अभी वो 30 दिन तो इज द मैक्सिमम टाइम विद इन विच दे हैव टू कम अप विद। उसके पहले मेरे हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि 31 अगस्त के बाद में बहुत सारे अकाउंट NPA में स्लिपेज होंगे। The resolution plan will not involve compromise settlement. The resolution plan may also include sanctioning of additional credit facility to address the financial stress of the borrower on account of COVID-19 if there is no renegotiation of existing debt. Resolution plan में वो क्या बोल रहे हैं कि resolution plan में आप हेयरकट की बात नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल हेयरकट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिजोल्यूशन प्लान में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी, तो वो आपको मिल सकती है सब्जेक्ट टू कि वो जस्टिफाइबल हो, एंड दैट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट और टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। भैया एक चीज था पूछूं क्या यहाँ पे अभी? बोलिए, बोल। भैया इसमें जो हम लोग इसमें ताकि उसको जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा। हाँ ठीक है, तो वो सेटलमेंट में या फिर उसमें रीनेगोशिएशन में नहीं आएगा क्या वो पार्ट? सेटलमेंट में कैसे आएगा? तुमने हेयर कट लिया है कोई? नहीं हेयर कट मतलब मैं, लेकिन अगर इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा तो एक तरीके से वो नेगोशिएट तो हुआ ही ना डेट मेरा। अगर मान लो 100 रुपए का डेट था और इक्विटी में प्रपोज कर रहा हूँ कि 50 में इक्विटी में कन्वर्ट करो, तो एक तरीके से वो रीनेगोशिएट करके 50 रुपए का डेट रह गया ना मेरा। तो अरे भाई रीस्ट्रक्चरिंग में तो नेगोशिएट तो करते ही हो आप। रीस्ट्रक्चरिंग जो करते हो, आपको कुछ FITL में ले जाना है, कुछ आपको अपना रिपेमेंट पीरियड चेंज करना है, तो वो सब तो रीनेगोशिएट होता ही है उसमें। हाँ लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक तो आप कंप्रोमाइज सेटलमेंट नहीं कर सकते रिजोल्यूशन प्लान में, और आप एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी में भी मांग सकते हैं अगर आपने रीनेगोशिएट नहीं किया है। सपोज बहुत बार क्या होता है कि हमको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं चाहिए, हमको ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग नहीं चाहिए, हमने क्या किया, हमने एडिशनल फंड मांग लिया। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने क्या बोला उसको कि हमको 6 महीने में हमारा इतना गैप क्रिएट हो गया है, अब वो गैप क्रिएट हो गया, उसके लिए एडिशनल लोन दे दीजिए। अब तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्या, मतलब ये अगर हमें एडिशनल फंड चाहिए तो हम लोग उसमें कहीं सेटलमेंट की या उसको रीनेगोशिएशन की बात नहीं करेंगे, जो मैं बात कर रहा था उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडिशनल फंड मांग रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग डेट का रीस्ट्रक्चर नहीं करवा सकते हैं। ओके आप एग्जिस्टिंग डेट का रीस्ट्रक्चर, आप जो एडिशनल फंड चाहिए वो एडिशनल जो फंड चाहिए, मैंने जो आपको रीस्ट्रक्चरिंग करवानी है, वो रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट और विथ एडिशनल फंड भी हो सकती है। जो आपको रीस्ट्रक्चरिंग करवानी है एग्जिस्टिंग डेट की, वो आपकी एडिशनल और विदाउट एडिशनल फंड की हो सकती है। ठीक है भैया। अच्छा सुदर्शन भाई, इसमें आपका मेरा वही जो क्वेरी था कि अकाउंट शुड रिमेन स्टैंडर्ड टिल द इन्वोकेशन डेट, तो आपका इन्वोकेशन डेट अभी तो आपका जैसे पॉलिसी फ्रेम होने में भी अराउंड 30 डेज का मैक्सिमम टाइम लिया गया है, और फिर उसके बाद रीपेमेंट सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मोरेटोरियम एक्सटेंशन आ नहीं रहा है, तो आपका मतलब अकाउंट्स तो उनको पेमेंट करते रहना पड़ेगा ना कंपनीज को जब तक रिजोल्यूशन प्लान करना पड़ेगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लोग जिनका 30 डेज से ज्यादा ओवरड्यू नहीं है, तो वो आपका 60 डेज और उन लोग का NPA कब होगा? और 60 डेज बाद कब? 1 अगस्त के अक्टूबर होगा? 30 अक्टूबर में होगा ना?
तो हाँ, मतलब तो भैया अक्टूबर में होगा तो अक्टूबर तक तुम इन्वोक कर सकते हो। हाँ, अक्टूबर के अगर पहले बैंक एग्री कर गया तो आपका ठीक है, बट नहीं तो क्या फिर मेरे को एग्री कर पेमेंट चालू करना होगा। क्या एग्री कर गया? इन्वोकेशन डेट पे। इन्वोकेशन मतलब क्या हुआ कि आपने रिक्वेस्ट लेटर विद रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया। नहीं, उसमें तो दिया ना, लेंडर शुड आल्सो अग्री उस टाइम पे कि अरे भाई एग्री मतलब क्या हुआ कि मतलब आज वो तो एक्नॉलेज ही करेगा ना चीजों को, वो एग्री कैसे करेगा? एग्री वही तो बैंक का तो जब तक फिर सैंक्शन लेटर नहीं तो आता फिर तब तक तो एग्रीमेंट है ही नहीं वो तो। हाँ, वही मैं बोल रहा था, वो फिर मेरे को उसमें तो क्वेरी है कि इन्वोकेशन वहीं डेट पे क्या है क्वेरी है आपका ना कि अपना। सिर्फ एप्लीकेशन हाँ कि सबमिट करने सेल से हाँ एप्लीकेशन इन्वोकेशन सबमिट हो करने से जाएगा। इन्वोकेशन हो हाँ जाएगा कि एप्लीकेशन विद कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने से इन्वोकेशन हो गया है। इन्वोकेशन तो हो गया है, तो लेंडर, दैट बट उसमें मीन लिखा है लेंडर शुड अग्री, वो आपका मतलब सैंक्शन नहीं है उसका मतलब। नहीं सैंक्शन कहाँ से आएगा भाई? एक महीने में सैंक्शन हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग तो बाद में, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो यही तो क्वेरी था ना, मतलब अपने बस आपका हाँ अगर जमा कर दिए तो मतलब नाउ वी आर मतलब वी आर एलिजिबल, उसका पेमेंट नहीं करना है मेरे को। पेमेंट नहीं करना कौन बोला? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए आपका ये सितंबर में हम लोगों ने जमा कर दिया सैंक्शन प्लान, सॉरी कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन प्लान विद रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, अब बैंक ने आपका 2-3 महीने बैंक लगाएंगे आपका, उसको हो सकता है अप्रूव करने में। नहीं तो इसमें मेरा क्या तो आपका है, अक्टूबर में एनपीए हो रहा है, तो फिर मेरे को मैं क्या समझ करना गया। चाहिए था इसका कंपनी को? आंसर ये है कि आपका हाँ इन्वोकेशन डेट तक आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इन्वोकेशन के बाद में आपका कोई भी कारण से स्लिपेज में चला जाता है, अगर एनपीए हो जाता है और हम्म बाद में आपका रिजोल्यूशन प्लान आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम्म आपका जो इन्वोकेशन के डेट में स्टैंडर्ड जो स्टेटस था वो आपका हम्म रिस्टोर हो जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक बार ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया तो रिस्टोर हो जाएगा, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो बाद हाँ, में वो एनपीए रहेगा। बट इसमें रिस्क ये रहेगा कि आपका कंपनी को हो सकता है कुछ पीरियड के लिए एनपीए में जाना पड़ जाए अगर बैंक लेट करता है रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट करने में, तो हाँ वो ये एनपीए रिस्क में रहेगा। जहाँ ये रिस्क रहेगा, माने रिस्क क्या मतलब, वो तो इन्फॉर्म डिसीजन है, अगर कैश फ्लो नहीं है तो नहीं देंगे, कहाँ से देंगे? हाँ, और जब अगर देंगे तो वो रिफंड मिलेगा, ऐसा भी कुछ है क्या कि ये सब क्लैरिटी नहीं है ये सब पे, कि कौन अगर सा? वो देते हैं आफ्टर इन्वोकेशन डेट, अगर वो पेमेंट करते हैं तो वो सब रिफंड मिल जाएगा? वो सबका क्रेडिट मिल जस्ट टू जाएगा, वो सबका जस्ट टू क्रेडिट मिल जाएगा, वो सबका क्रेडिट मिल जाएगा। If in fact ठीक you है, can claim, in fact you can claim refund also if your plan is being implemented, ओके, ठीक ठीक है, है। ओके भैया, थैंक यू। Each lending institution shall put in place a board approved policy detailing the manner in which such evaluation may be done and the objective criteria that may be applied while considering the resolution plan in each case. इसमें क्या है कि जो कामत जी का जो मोटा मोटा अपने पास ब्रॉड बेंचमार्क आएगा, जहां पर वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स का बेंचमार्क देंगे कि आपका डीएससीआर इससे नीचे नहीं होना चाहिए, लोन टू लाइफ रेशियो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, एडजस्टेड डीएससीआर इतना नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, आईआरआर इतना होना चाहिए, ये सब जो भी इनका बेंचमार्क आएगा, वो दैट बेंचमार्क नीड टू बी अप्रूव्ड बाय many different lending institutions. They are going to get it placed before their board and get it approved, and moreover over and above that benchmark, if they want to stipulate any additional benchmark for safeguarding the assets of the bank, then they can get it approved accordingly. जैसे आज कामत जी ने बोल दिया टीवी स्टडी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बोल स्टडी करवानी और टीवी स्टडी मैंडेटरी है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो वो पुट स्टिपुलेट कर सकते हैं कि टीवी स्टडी होनी चाहिए हर एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की, ठीक है। Timeline and process of restructuring. One time restructuring plan may be invoked any time before 31st December 2020 and must be implemented within 180 days of invocation. तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं दो कंडीशन इन्वोकेशन का, कि एक तो जब इन्वोकेशन हो तब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, दूसरा है कि आपका 31 दिसंबर 2020 के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये इट्स अ वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहता है विदाउट डाउनग्रेडिंग द अकाउंट, उसको 31 दिसंबर 2020 के अंदर हो जाना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए विद कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन प्लान, और जिस समय अप्लाई करे उस समय स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब 89 डे तक ओवरड्यू चलेगा उस समय।
lending institutions are required to sign an inter-creditor agreement ahead of restructuring. Lenders who do not sign inter-creditor agreement within 30 days of invocation of resolution plan shall attract 20% provision or the provision required as per extant IRAC norms, whichever is higher. Lenders who sign inter-creditor agreement within 30 days of invocation of resolution plan shall attract 10% provision. अब इसमें क्या होगा, बहुत बार अपना क्या होता है कि अपने जो बॉरोवर होता है उसका मल्टीपल में और कंसोर्शियम बैंकिंग होती है, तो उसमें क्या होगा कि जिस दिन आपने इन्वोक किया उसके 30 दिन के अंदर सारे जो भी लेंडर्स हैं, इररेस्पेक्टिव वो मल्टीपल में है या कंसोर्शियम में है, वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करेंगे और इंटर क्रेडिटर साइन करेंगे. अगर वो साइन करते हैं तो उनको 10% प्रोविजन करनी पड़ेगी. अगर वो साइन नहीं करते हैं तो उनको 20% प्रोविजन क्रिएट करना होगा. 20%. हाँ जी, इसमें ये की पॉइंट देखा था मैंने, तो 10% हैज टू बी डन ऑन द रेजिडुअल डेट, वेयर इज 20% इन केस ऑफ दोज हु डोंट साइन हैज टू बी डन ऑन द कैरिंग डेट. दोनों में क्या अंतर होता है? अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रेजिडुअल डेट इज द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान. जो रेजिडुअल डेट फ्यूचर का उसके ऊपर में 10% करना है, जबकि 20% जो करना है कैरिंग डेट, दैट मींस एज ऑन द डेट. मैं समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाइए. Based upon the plain reading of the circular, it says that 10% of the total debt. नहीं, 10% मतलब जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन कर चुका है. हाँ, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो साइन हो चुका है उसका रेजिडुअल डेट जो है. रेसिडुअल मतलब क्या होता है? Post जो this residual date has been referred into June 19 circular, where it says that residual date means the date post restructuring. नहीं, मैं समझा नहीं. पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग डेट में अभी कैसे फाइनलाइज करूंगा और उसके ऊपर प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा? पहले में ही, पहले ही. इसको this point is to be checked, but this is a major difference. The 10% is on the residual date. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है. देखिए मैं पैरा नंबर 40 पढ़ रहा हूँ. पैरा नंबर 40 जो है इसमें लिखा हुआ है कि 10% टोटल डेट इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी इशूड इन टर्म्स ऑफ क्लास 40 हेड बाय आईसीएस सिग्नेटरी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ब्रैकेट में रेजिडुअल डेट. जबकि नेक्स्ट पैरा में 20% जो लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ कैरिंग डेट. इसको नोट कर लेते हैं हम लोग एक बार, बट इट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ठीक है, डन है. तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग, राइट सर, यही समझते हैं अभी कि जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करेगा उसको 10% करना पड़ेगा प्रोविजनिंग. अब वो 10% किसका है उसमें अभी नहीं जाते हैं. जी. और जो नहीं करेगा उसको 20% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, इन अ मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम लेंडिंग अरेंजमेंट, if 60% of the lenders by number and 75% by value of the total outstanding credit facility, including fund-based and non-fund-based, do not sign the ICA intercreditor agreement, then the invocation shall be considered as lapsed and the one-time restructuring scheme can then not be invoked for such cases again. तो मतलब हमने invoke कर दिया intercreditor agreement 60% by number and 75% by value का वोटिंग उसको नहीं मिला कि हमको वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, तो वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं पाएगा. So in this case, even your bankers play a very important role, जो जहाँ पे उन लोगों को पहले invocation plan करने से पहले ये go नहीं, invocation के बाद है ये. अच्छा, ये invocation के बाद, ठीक है, इन्वोकेशन के बाद वो 30 डेज के अंदर इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करेंगे और साइन करने के पहले अगर 60% बाय नंबर और 75% वैल्यू ने अगर साइन नहीं किया है तो वो लैप्स हो जाएगा, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आगे नहीं बढ़ेगा. Got it. ठीक है. Lenders to the borrower which are other than lending institutions as per this circular may also sign the intercreditor agreement if they so desire. If such lenders sign the intercreditor agreement, they shall be fully bound by the stipulation of the intercreditor agreement.
क्या है कि लेंडर्स को छोड़ के बहुत सारे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनका एक्सपोजर होता है बोरोवर के ऊपर, लाइक म्यूचुअल फंड हो गए आपके, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गए, और भी बहुत तरह के एक्सपोजर्स, क्रेडिट एक्सपोजर्स होते हैं। तो वो लोग भी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के पार्ट बन सकते हैं इफ दे सो डिजायर। Lending institutions may allow for extension of the residual tenure of the loan with or without payment moratorium by a period not more than 2 years. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आज सपोज हमारा टर्म लोन 5 साल का हमको दिया हुआ है, तो वो 5 साल का टर्म लोन 7 साल मैक्सिमम टेन्योर उसका 7 साल हो सकता है। 7 साल के ऊपर उसका टेन्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का मानना यह है कि आपको 5-6 महीने में जो भी कोविड-19 के कारण आपको जो भी नुकसान हुआ, वो 5-6 महीने का नुकसान अगर आप 2 साल में अगर उसको नहीं पूरा कर सकते हैं, तो आप इस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में मत आइए। तो आपको डीप रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, जो कि उसका जून 2019 वाला सर्कुलर में जाइए और उसमें डाउनग्रेड करवाइए अपना अकाउंट को। मगर इसमें नए लोन जो मिलेंगे, वो नया लोन आपको एज पर द असेसमेंट के हिसाब से मिलेगा, और वो आपका 2 साल या 2 साल से ऊपर भी हो सकता है। अच्छा सुदर्शन भाई, इसमें एक और क्वेरी है कि इसमें मोरेटोरियम मैक्सिमम कितना अलाउड है, ये तो नहीं मेंशन है ना? ऐसा 2 कुछ नहीं साल का है। टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है, बट मोरेटोरियम का कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना मोरेटोरियम होगा। 2.5 या 3 भी हो सकता है इन रेयर केसेस, मतलब मोरेटोरियम मतलब टेक्निकली हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है बैंक नहीं माने। नहीं, टेक्निकली भी यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि विद और विदाउट पेमेंट मोरेटोरियम बाय ए पीरियड नॉट मोर देन 2 years। हाँ, तो वो टेन्योर की मतलब बात कर रहा है। मोरेटोरियम के लिए तो कोई लिमिटेशन डाल नहीं रहा है। मोरेटोरियम आपका 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। मेरा पर्सनल व्यू है कि 2 साल से ऊपर मोरेटोरियम टेक्निकली तुम नहीं ले सकते हो, अच्छा, क्योंकि जब 2 साल से तुम्हारा एक्सटेंड हो रहा है लोन, तो 2 साल से ऊपर मोरेटोरियम नहीं देंगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि बैंक तो नहीं मानेगा, मतलब बट जस्ट मानेगा नहीं, मैंने टेक्निकली वो नहीं अलाउ करेगा। ओके। In cases where a loan is converted into other debt instrument, such debt instrument with terms similar to the loan shall be counted as part of the post resolution debt। तो मतलब आज अपने डेट का नाम कुछ भी बदल दे, टर्म लोन को FITL बोल, ये कैश क्रेडिट को FITL बोल दे या WCTL बोल दे, डेट ही होता है और सिमिलर टर्म्स में होगा वो, और उसको पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग भी डेट ही माना जाएगा। In cases where there are multiple banking or consortium banking arrangement, all disbursement made to the borrower by the bank, payment made by the borrower to the bank shall be routed through an escrow account maintained with one of the lending institutions। तो post restructuring जो भी डिसबर्समेंट या पेमेंट कुछ भी होगा, वो एस्क्रो अकाउंट से रूट होगा, और वो एस्क्रो अकाउंट वन ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास आपको ओपन करना होगा, सो दैट कैश फ्लो के ऊपर और पेमेंट्स और ये डिसबर्समेंट्स के ऊपर कंट्रोल रहे पूरा। मोरेटोरियम के ऊपर एक और क्लैरिटी चाहिए था। इसमें जैसे है कि 2 years तक बढ़ सकता है, लेकिन मेरा मान लो बिफोर डिफॉल्ट मेरा जो DSCR था प्रोजेक्टेड जो मैंने किया था, तो वो ऑलरेडी मेरा बड़ा टाइट था, मतलब 1.35 था। मैं समझ नहीं पाया तेरी बात, मैं समझ नहीं पाया। मैं क्या 2 साल का मॉनिटोरियम का जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि मैक्सिमम 2 years का मॉनिटोरियम हो सकता है, 2 साल से वो एक्सटेंड हो सकता है जो एग्रीमेंट है। तो मेरा जो पहले जो इवैल्यूएशन किया था उसमें अगर मेरा DSCR ऑलरेडी टाइट था, 1.35 था, तो जब मैं मॉनिटोरियम अगर उसमें अप्लाई कर दूंगा तो मेरा ऑलरेडी FITL का बर्डन और बढ़ जाएगा, मतलब ये टोटल डेट सर्विसिंग इन पर्टिकुलर 5 years और 3 years व्हाटएवर इट इज, तो उसमें मेरा आउटफ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा उसमें, तो DSCR मेरा ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा तो वाइबल ही नहीं है, तो वाइबल नहीं है तो रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करवा रहे हो?
अगर वाइबल नहीं है तो वन मैं टाइम वही कह रहा हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करवाओगे? पैरामीटर जो है डेट तो मैं सर्विस कर सकता हूँ, लेकिन जो पैरामीटर है कि मेरा 1.25 का डीएसआर आना चाहिए या जो भी है वो काम की उनसे तो आएगी पैरामीटर रिपोर्ट से नहीं जो भी आएगा तो आएगा। जून में जाओ ना, जून में जाओ, अगस्त में मत आओ। ओके। अगस्त में मत आओ, अगस्त के पैरामीटर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो जून में जाके डीप रिस्ट्रक्चरिंग करवाओ। हाँ, मतलब उसमें सिंपल सा है कि अपना अकाउंट को डाउनग्रेड करो। हाँ, asset classification and provisions. Additional finance to borrowers in respect of whom the resolution plan has been invoked is sanctioned even before implementation of the plan in order to meet the interim liquidity requirement of the borrower may be classified as standard asset till the implementation of the plan regardless of the actual performance of the borrower with respect to such facilities in the interim. अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के पहले रेफरेंस डेट के बाद इम्प्लीमेंटेशन के पहले अगर कुछ भी आपने इंटरनल फंडिंग ली है, वो इंटरनल फंडिंग का कोई भी स्टेटस हो, एक्चुअल स्टेटस कुछ भी हो, और अगर आपका रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो इंटरनल फंडिंग जो आपने ली थी वो स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, वो डाउनग्रेड नहीं होगा। मैं फिर से समझाता हूं कि अगर आपने कोई भी इंटरनल फंडिंग ली है और इंटरनल फंडिंग लेने के बाद में आपने रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल डाल दिया और रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल आपका अप्रूव हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया, तो इंटरनल फंडिंग में आपने क्या आपका क्या डिफॉल्ट था, एनपीए हो गया, कुछ भी हो गया, फिर भी वो आपका अपग्रेड हो जाएगा अकाउंट और वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। So मतलब just to understand a little better, Sudarshan, for example, अगर हमने आज वो implementation plan डाला, अब वो जब तक उसका sanction नहीं आया, बीच में हमारा अगर कोई भी account irregular होता है, तो will that be treated as a standard? वो at that moment of time that will not be treated as standard. मगर अगर आपका इम्प्लीमेंट, अगर वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होके इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आपका जो भी आपका वो इरेगुलर, जो भी आपका वो आपका एसएमए में था या एनपीए हो गया था, वो आपको अपग्रेड हो जाएगा अकाउंट। ओके, इम्प्लीमेंट होता ही वो अपग्रेड हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो एक्चुअल जैसा है वैसे रहेगा। हाँ, ठीक है, मतलब गॉट इट। अगर वो बाय चांस रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है तो देन इट विल बिकम अ रेगुलर अकाउंट इन केस देयर इज ड्यू डिफॉल्ट, राइट। However, if the resolution plan is not implemented within the stipulated timeline, the asset classification of the additional finance sanctioned will be as per the actual performance of the borrower with respect to the additional finance or the rest of the credit facility, whichever is worst. तो जो आप सोनल जी बोल रहे थे कि अगर नहीं होगा वो स्टिपुलेटेड टाइम में, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो एक्चुअल उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा, क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी दैट, मतलब वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं है। If a resolution plan is implemented in adherence to the provisions of this facility, the asset classification of borrower's account classified as standard may be retained as such upon implementation. Whereas the borrower's account may have slipped into NPA between invocation and implementation, may be upgraded as standard as on the date of implementation of the plan. तो इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका इन्वोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में अगर आपका अकाउंट अगर स्लिप हो जाता है एनपीए में या एसएमए में कुछ भी, तो आपका अगर वो रिजोल्यूशन प्लान अगर विद इन द टाइमलाइन अगर आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आपका वो अकाउंट जो कि एनपीए में स्लिप हो गया था या एसएमए में स्लिप हो गया था, वो आपका और बाद में वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा एज ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। The account will
continue to retain standard asset classification after the implementation of the plan. Lenders will have to keep additional 10% provision against post resolution of debt. तो जो 10% उन्होंने जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया था, वो 10% का जो प्रोविजन था, वो क्या है कि वो मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर अगर आपका कुछ हो जाता है तो रिवर्सल नहीं होगा, नहीं तो वो बाद में रिवर्सल हो जाएगा. Monitoring period. The RBI has prescribed a clear monitoring period for accounts which are restructured under this scheme. What do you mean by monitoring period? This period begins from the date of implementation till the point in time when the borrower pays back at least 10% of the residual debt. Residual debt, when we talk about, it's a restructured debt I'm talking about, subject to a minimum of 1 year from the commencement of the first payment of interest or principal, whichever is later, on a credit facility with longest period of moratorium. तो मतलब इसमें क्या है कि अगर आपका मोरेटोरियम पीरियड मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपका प्लान इंप्लीमेंट हो गया और जिस दिन तक आपका एक साल बीता नहीं, आपने 10% पेमेंट नहीं किया, तब तक आपका वो मॉनिटरिंग पीरियड में रहेगा. मतलब आज सपोज आपको एक साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना ही है कि आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साल आपने अच्छा से दिया है, एक साल दिया है, एक साल और 10% भी आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट भी आपको एटलीस्ट वो 10% पेमेंट आपको रिस्ट्रक्चर्ड डेट का 10% पेमेंट आपको करना होगा, तभी आपका ये अपग्रेड हो पाएगा. In case a borrower is in default with any of the lending institution during the moratorium period, monitoring period, a review period of 10 days gets triggered. If the default is not resolved within this review period, the account is classified as NPA by all the lenders involved. अगर आपका एक प्लान इंप्लीमेंट हो गया और आपका 1 डे डिफॉल्ट भी होता है और वो 1 डे डिफॉल्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर अगर उसको आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो आपका 90 दिन के लिए वेट नहीं किया जाएगा. 30 दिन के बाद वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा और वो अकाउंट एनपीए हर एक लेंडर्स का हो जाएगा, हर एक लेंडर्स के बुक्स में वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा. तो अगर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड के बाद में अगर 1 डे डिफॉल्ट होता है तो 30 दिन के अंदर उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसको रेगुलराइज करना है. अगर आप रेगुलराइज कर पाते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट 30 दिन के बाद एनपीए हो जाएगा. वो 90 दिन वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर. Lenders can write back half of the provision held against restructured account after the borrower pays back at least 20% of the residual debt. The remainder of the provision can be written back after another 10% of the residual debt is repaid without the account slipping into NPA. तो अगर जिस दिन आपका 20% ऑफ द रिस्ट्रक्चर्ड डेट अगर आपका रीपे हो जाता है और अनदर 10% जब और रीपे हो जाएगा, तो पहला 20% जब रीपे होगा तो हाफ ऑफ द प्रोविजन जो आपने पहले क्रिएट किया था वो आपका रिवर्स हो जाएगा और अनदर 10% ऑफ द डेट पेमेंट करने के बाद में जो रिमेनिंग हाफ है वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा. Upon completion of the monitoring period without being classified as NPA, the asset classification norms will revert to the criteria laid down in the master circular this. तो जैसे ही आपका मॉनिटरिंग पीरियड से आप बाहर निकल जाएंगे तो वैसे ही आपका नॉर्मल जो आपका एनपीए का जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स का और इनकम रिकॉग्निशन का जो नॉर्मल अकाउंट के लिए जो
गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग पीरियड मतलब आपके लिए बहुत बहुत एक तरह से ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें क्लोज वॉच रखते हैं बैंक कि आप कहीं भी, मैंने एक तरह से ये आईसीयू है, आईसीयू में रहेंगे मॉनिटरिंग पीरियड में। तो स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। डिस्क्लोजर्स, बैंक को कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश डिस्क्लोजर्स विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ अकाउंट्स वेयर इन one time restructuring plan is implemented and the outstanding loan to such account on quarterly basis starting March 31st March 2021। तो 31st March 2021 से कितने वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इंप्लीमेंट हुए और उसके क्या आउटस्टैंडिंग लोन थे उस अकाउंट में, वो सारी चीजें उनको डिस्क्लोजर्स देनी होगी बैंक को। बैंक में जिसके लिए ये एप्लीकेबल है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, जो कर सकता है रिस्ट्रक्चरिंग। They will also be required to disclose the quantum of loan which were classified as standard after the restructuring plan, but letters slipped into NPA during the monitoring period on a half-yearly basis starting 30th September 2021। तो 30th September 2021 से आपको ये बताना होगा कि मॉनिटरिंग पीरियड में आपके कौन कौन से लोन फिर से एनपीए हो गए, मतलब 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट थे उसमें, जिसमें 30 दिन के अंदर उन्होंने रेमेडियल मेजर्स नहीं ले पाए, उनको रेगुलराइज नहीं कर पाए। वो सारे अकाउंट की भी डिटेल्स आरबीआई के पास जानी चाहिए और इसका एक अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसमें जाएगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड फॉर रिटेल लोन्स। अब रिटेल लोन में क्या है कि इंडिविजुअल को जो लोन दिया जाता है, जो कि होम लोन भी हो सकता है, एजुकेशनल लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, ये सारे लोन जो है वो इसके अंदर कैप्चर्ड हो रहे हैं। द वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मतलब इंडिविजुअल लोन बोल रहे हैं यहाँ पर, पर्सनल लोन मतलब वो भी इंक्लूड है इसमें। The framework of restructuring such loans which have been impacted by COVID-19 shall be as described here. All loans extended by lending institutions to individual borrowers shall be covered under this framework. Lenders will not be allowed to restructure loan they have granted to their own personals or staff under this framework. So अगर आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कोई स्टाफ को दिया है लोन तो रिस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Accounts classified as standard and not in default for more than 30 days as on 1st March 2020 shall be eligible for restructuring. Further, the account should continue to remain standard till the date of invocation. The eligible borrower's account should continue to be classified as standard till the date of invocation of resolution under this framework. For this purpose, the date of invocation shall be the date on which both the borrowers and lending institutions have agreed to proceed with a resolution plan under this framework. The invocation of the resolution plan can be done at any time before 31st December 2020 and will have to be implemented within 90 days of such invocation. Normal corporate loan अपने को 180 days में implement करना पड़ता है, यहाँ पर individual loan अपने को 90 days में implement करना होगा। Lending institutions may allow reschedulement of payments, conversion of any interest accrued or to be accrued into another credit facility, or granting of moratorium based on assessment of income streams of the borrower, subject to a maximum of 2 years. Correspondingly, the overall tenure of the loan may also get modified commensurately. तो मतलब जिसने home loan, personal loan, consumer loan कुछ भी लिया है, तो this is a lifetime opportunity to get it one time restructured without downgrading the account, and the end of sale is 31st December 2020. So इस बार ये एक
ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये डाउनग्रेड नहीं हो रहा अकाउंट, सिबिल और क्रेडिट आपका हिट नहीं करेगा। मगर हाँ, ये हो सकता है कि 2 साल बाद अगर आप किसी को लोन लेने जाए तो वो पूछेगा कि आपने उस समय रिस्ट्रक्चर करवाया था क्या, तो उससे थोड़ा सा आपको फर्क पड़ सकता है। मतलब 100% अनअफेक्टेड रहेंगे ये नहीं बोल सकता हूँ, मगर कैश फ्लो को देखते हुए रीशेड्यूलमेंट करवा सकते हैं। दूसरा जो सर्कुलर है जिसमें एमएसएमई की बात कर रहे हैं अपने, वो एमएसएमई का सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है एज ऑन 1 मार्च 2020, तो आप इस सर्कुलर के पार्ट बन सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बोरोवर है ये एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द पर्टिकुलर बैंक नहीं है। अगर कोई भी कंपनी में अगर एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़ से ऊपर होता है तो वो एमएसएमई के इस सर्कुलर का पार्ट नहीं बन सकता है। एंड द रेफरेंस डेट इज 1 मार्च 2020। The borrower account was a standard asset as on 1 March 2020। जब वो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि आपका वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर वो कहीं पर भी 30 डेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका SMA 1, SMA 2, SMA 0 कुछ भी चलेगा, स्टैंडर्ड होना चाहिए, NPA नहीं होना चाहिए। The restructuring of the borrower account is implemented by 31 March 2021। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्वोकेशन डेट उन्होंने कुछ बताया नहीं है। यहाँ पर कभी भी आप डाल सकते हैं, मगर आपका इम्प्लीमेंटेशन आपका 31 मार्च 2021 तक हो जाना चाहिए। द बोरोइंग एंटिटी आपका GST कंप्लाइंट होना चाहिए। अगर GST कंप्लाइंट अगर एग्जेम्प्ट है तो कोई बात नहीं। And this shall be determined on the basis of exemption limit obtaining as on 1st March 2020. Asset classification of borrowers classified as standard may be retained as such, whereas the account which may have been slipped into NPA category between 2nd March 2020 and date of implementation may be upgraded as standard asset as on the date of implementation of the restructuring plan. The asset classification benefits will be available only if the restructuring is done as per the provision of this circular. तो 1 मार्च में आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, बाद में आपका NPA हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इम्प्लीमेंट होगा रिजोल्यूशन प्लान तब आपका वो अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस डेट इज 1 मार्च 2020, जिसमें आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब आपका वो SMA भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, NPA नहीं होना चाहिए। NPA हो गया तो ये सर्कुलर आपका नहीं आपका अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टैंडर्ड में होना चाहिए, SMA नॉन SMA कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और 2 मार्च 2020 के बाद अगर वो NPA हो भी जाता है तो इट इज नॉट बी गोइंग टू अफेक्ट। अगर वो NPA हो गया तो एक बार आपका प्लान इम्प्लीमेंट हो गया तो आपको आपका जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो जो आपका 1 मार्च में जो स्टैंडर्ड एसेट था वही वहां पर आ जाएगा। For accounts restructured under these guidelines, banks shall maintain additional provision of 5% over and above the provision already held by them. तो अगर ये अट्रैक्ट करता है तो बैंक को 5% एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। Now I will invite questions as less as possible. एक क्वेश्चन है सुदर्शन भैया, आपका जैसे अगर कोई MSME बोरोवर है जिनका इक्विपमेंट लोन है और आपका उनका ये कार लोन है और हाउसिंग लोन है पर्सनल, तो आपका ये सब कुछ कवर्ड हो जाएगा क्या? कि पर्सनल लोन आपका अलग सर्कुलर में है, मतलब वो समझ नहीं पाया, फिर से बोलो मैंने और उनका इक्विपमेंट लोन MSME में फॉल करेगा? नहीं, एक बार फिर से बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं बोल रहा हूँ देयर इज एन MSME बोरोवर। MSME मतलब उसका क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? MSME का स्ट्रक्चर क्या है? मतलब
25 करोड़ से कम है आपका, 100 करोड़ से MSME का turnover स्ट्रक्चर कम क्या है? 25 करोड़ स्ट्रक्चर से आउटस्टैंडिंग लोन्स कम है। MSME का स्ट्रक्चर क्या है? फर्म है, सपोज फर्म है, फर्म मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म या Partnership पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप पार्टनरशिप, हाँ। हाँ, एंड दे हैव इक्विपमेंट फाइनेंस, ठीक है, उनका इक्विपमेंट फाइनेंस है, उनका आपका ये कार लोन्स है काफी, और आपका ये उनका आपका पर्सनल होम लोन्स है काफी, मतलब 4-5 घर के होम लोन्स है, तो दे आर मतलब काफी उनका डेट प्रोफाइल काफी हाई है, तो मतलब बट आपका ओवरऑल एक्सपोजर 25 करोड़ से नीचे है, तो आपका वो सारे लोन्स रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे कैश गाइडलाइंस में, होम लोन्स भी, कार लोन्स भी। होम लोन्स, कार लोन्स सब कुछ कवर्ड है क्या? उन्हें आप बोलना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म ने होम लोन लिया है? नहीं, होम लोन पार्टनर ने लिया है, पार्टनरशिप फर्म ने कार लोन लिया है। तो हम अभी किसकी बात कर फर्म रही ने है? कार लोन वो लिया। नहीं, हाँ? इसके ऊपर एक पर्सनल लोन वाला भी था ना, इसके ऊपर एक पर्सनल लोन का भी था ना प्रोविजन इसके ऊपर। वो पर्सनल लोन तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वो दोनों का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपका एक मतलब ये सिनेरियो मैं दे रहा हूँ कि इसमें आपका पार्टनर्स का होम लोन है और फर्म का कार लोन एंड इक्विपमेंट। अरे यार मेरे को कंफ्यूज मत कर, पार्टनर्स का होम लोन पार्टनरशिप फर्म में कैसे आएगा? पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, आपका पार्टनर के पास है। यार थोड़ा सा इसको ब्रेकअप कर दे, क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट मत कर, मेरे को थोड़ा ठीक है, ब्रेकअप करके समझा पहले दे। मैं पूछ रहा हूँ आपका कि अगर एक एमएसएमई फर्म है जिनका कार लोन एंड MSME इक्विपमेंट पार्टनरशिप फर्म है, तो वो भी सब कवर्ड है क्या? MSME हाँ। पार्टनरशिप फर्म है, उसमें क्या क्या लोन है? इक्विपमेंट फाइनेंस है एंड कार लोन है, बस दो ही है। हाँ तो वो इसमें आ जाएगा। कार लोन भी आ जाएगा, मतलब ऐसे कार लोन अलग से एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड नहीं है ना? एग्रीगेट एक्सपोजर की बात कर रहे हैं ना भाई, एग्रीगेट हाँ। एक्सपोजर 25 करोड़ तक है, तो ये MSME नहीं। वाला सर्कुलर अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कहीं कार लोन कहीं कॉर्पोरेट लोन से एक्सक्लूडेड नहीं होता है ना, कि कार लोन एक्सक्लूडेड है कॉर्पोरेट लोन से। मैं कोई कॉर्पोरेट लोन की बात ही नहीं किया हूँ यहाँ पर, ना मैंने कोई Okay, टाइप any ऑफ लोन की, facility. मैंने एग्रीगेट डेट की बात की है। एग्रीगेट डेट विल बी रिस्ट्रक्चर्ड एनी काइंड ऑफ डेट। एग्रीगेट डेट मेरा 25 करोड़ से नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्रीगेट डेट मेरा 25 करोड़ तक होना चाहिए, तभी मेरा वो सर्कुलर अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होने के बाद में क्या आपको रिस्ट्रक्चर करना है क्या नहीं करना है वो आपका पर्सनल है, ऐसा नहीं है कि तुमको सारा डेट ही रिस्ट्रक्चर करना होगा। मैं समझा पाया? ठीक है, ओके। नहीं, बस मेरा भैया क्वेरी यही था कि कार लोन एलिजिबल होगा ना, मतलब मैं लोन में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा हूँ नेचर ऑफ लोन में, मैं तो डेट है, अगर वो डेट का पार्ट है तो डेट है वो। ठीक है, तुम्हारा अगर कोई अलग से सबमिशन है जहाँ पर तुमने देखा है कि नहीं एक्सक्लूड है इंक्लूड है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, नहीं वैसा अभी तक आया नहीं है सिनेरियो मेरे सामने। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ज्योति जी, सुदर्शन जी, हाँ जी बताए सर। एक क्वेरी है कि एक कंपनी है जो कि डी रेटेड है। डी रेटेड है? डी रेटेड ऑलरेडी फ्रॉम केयर रेटिंग से। तो डी रेटेड तो एनपीए हो गया ना? नहीं, डी रेट वही मैं क्वेश्चन पूरा करता हूँ मैं। कंपनी इज डी रेटेड बट द अकाउंट इज स्टैंडर्ड बिकॉज द अकाउंट इट इज बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम 3 banks. From one of the bank, let's say with HDFC Bank it is NPA, but whereas with PNB and Union Bank it is standard. There is some dispute going on with HDFC Bank. Can such a company opt for this circular and make a proposal, invoke the restructuring proposal, and in this 75% and 60 rule, the HDFC Bank gets ruled out and maybe they don't sign the ICA? मैंने पहले भी पढ़ा था, बोला था, अभी भी मैं फिर बोल देता हूँ कि ये जो 30 डेज ओवरड्यू वाली भी जो बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ जी, ये बॉर्डोवर सेंट्रिक है, बॉर्डोवर के अकाउंट सेंट्रिक है। ठीक है। तो मैं जब बॉर्डोवर का अकाउंट सेंट्रिक बोलता हूँ तो मैंने बॉर्डोवर के सारे लोन में कहीं पर भी 30 डेज ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। ये ओवरड्यू है नहीं सर। एनपीए ओवरड्यू है सर, आप तो एनपीए बोल दिए ना।
ओवरड्यू पहले था, फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स ओवरड्यू नहीं है, बट बैंक ने सर एज ऑन 1 मार्च 2020 में क्या स्टेटस है? ओवरड्यू नहीं है, बट द रेटिंग एचडीएफसी बैंक हैज नॉट सर करेक्टेड। रेटिंग से कोई मतलब नहीं है मेरे को बताइए मेरे को बैंक का अगर मैं क्रिलिक या सिबिल निकालूं तो वहां पर मैं और अकाउंट स्टेटमेंट में एनालाइज करूं तो कहीं पे भी 30 डेज ओवरड्यू है नहीं, ओवरड्यू नहीं है। तो एप्लीकेबल है सर। मेरे को रेटिंग से कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट। मैं अगर ये सब्सटैंशिएट कर सकता हूं कि मेरा अकाउंट स्टेटमेंट से कि मेरा 30 डेज ओवरड्यू नहीं है तो ये एप्लीकेबल है। परफेक्ट है जी। इसी में कि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें कि चलो भाई दो में रेगुलर है और एक में ओवरड्यू है, तो जो रेगुलर वाले बैंक हैं वो उसको आईसीए पर साइन करा सकते हैं क्या? और दैट विल डिपेंड अपॉन, क्या बोल रहे हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्या मतलब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मे बी, कि मान लीजिए 3 बैंक में, एक बैंक में मेरा ओवरड्यू है और 2 बैंक में ओवरड्यू नहीं है, और जहां पर ओवरड्यू है वहां पर ये लेट्स से 40% से कम है, या लेट्स से 25% से कम है। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल जब तक आप अपने लेंडर्स को ये सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे जब मोमेंट यू हैव सेटिस्फाइड देम विद द जस्टिफिकेशन दे आर गोइंग टू साइन इट आउट। आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग क्यों चाहिए तो वो आप क्यों साइन करेंगे? ठीक है जी, परफेक्ट है जी। सोनल जी, आपकी टीम का और आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सुदर्शन, मतलब अभी तक तो क्लैरिटी काफी आ चुकी है आउट ऑफ द डिस्कशन सब वी हैड, सो वी वुड समझ में आ गया? हाँ, मतलब वी वुड स्टिल रीड थ्रू द सर्कुलर वंस। एक बार जो तूने भी नोट्स जो आपने शेयर करे थे, एक बार हम लोग नहीं, दोबारा मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ, ट्रीट दिस वन एज अपडेटेड। हाँ तो ये मैं आपसे फिर से शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ओके तो अकॉर्डिंगली हाँ प्लीज एक बार ये शेयर कर लो, वी विल आल्सो लुक इनटू इट, बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ वेरी क्लियर सेशन व्हिच हैज बीन टेकन, and we would have a lot of more queries once we read the circular properly again, so we will definitely get back to you अगर कुछ भी होता है तो we will definitely get back to you on that. ठीक है। Any other queries from any other respected members? सिर्फ छोटा सा ये पूछना था अभी सुदर्शन मेरे को, अभी मतलब दिस इज सेक्टर एग्नोस्टिक राइट, सो यू कैन लुक एट रियल एस्टेट आल्सो एज अ सेक्टर। सो अगर रियल एस्टेट में भी कोई भी अकाउंट अगर अपने को रीस्ट्रक्चर कराना है तो रियल एस्टेट कंपनीज कैन आल्सो बी कवर्ड राइट? रियल एस्टेट ही ज्यादा इससे बेनिफिट उठा पाएगी। हाँ, बिकॉज मेजरली तो वहीं पे रिक्वायरमेंट है उनको, क्योंकि वहां पर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट दैट मच। अगर उनको 2 साल का मिल जाता है तो उनके लिए बल्ले बल्ले। एब्सोल्युटली, मेरे को यही लग रहा है कि रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रा हो गया, सो दीस काइंड ऑफ कंपनीज वुड बी द मेजर बेनिफिशियरी। इंफ्रा में तो आई डाउट, क्योंकि वहां पर नॉन फंड बेस्ड ज्यादा होता है। और क्या लग रहा है देखो, रियल एस्टेट के अलावा और कौन से सेक्टर्स? मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी में 2 साल में कुछ नहीं होगा। नहीं, बट अभी जैसे जो these guys are shut down from last 4-5 months, so at least 2 years of a moratorium would give them some breathing space to revive back at least. What is your thought on that? ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो है, मगर मेरे को नहीं लगता परमानेंट सोल्यूशन है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए डीप रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। 2 साल के बाद अगर रेवेन्यू स्ट्रीम ठीक हो जाएगी उनकी होटल्स की, हाँ, तो फिर रीपेमेंट हो ही सकता है ना 2 साल में। तो मतलब इट इज बेसिकली जैसे वैक्सीन आ जाएगी आपकी, तब तक तो सारा फिर टूरिज्म चालू हो जाएगा ना। अभिषेक, यू नीड टू अप्रिशिएट कि 2 साल का तुम जो डेफरमेंट ले रहे हो ना, वो 2 साल का तुम्हारा इंटरेस्ट भी तुम्हारा एक्यूमुलेट हो रहा है, कोई वेवर नहीं है। मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना सर, मैं अगर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करूंगा तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट इंटरेस्ट आज के दिन में विजिबिलिटी नहीं है कि होटल कब खुलेंगे। नहीं, मैं मानता हूँ विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन खुल गए, हाँ काफी सारे तो खुल गए हैं वापस है, मतलब मोस्ट ऑफ दीज गाइस हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस एट लीस्ट फ्रॉम 1st of August टाइप्स।
मगर आई डाउट कि मेरे को नहीं लगता कि अभी कुछ नेगेटिव इफेक्ट ही है सब में, तो वो इंटरेस्ट भी कैसे पेमेंट करेंगे मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट अभी जैसे इन लोगों के लिए तो कोई सोल्यूशन है नहीं है, तो probably this could be a temporary solution for these guys till the time they work out some deep restructuring kind of a plan. एकदम Okay. So real estate हो गया, एक manufacturing हो गया, hospitality हो गया. How about auto? Do you think auto is going to be get benefited out of it? 2 साल ठीक अच्छा होता है उनके लिए, क्योंकि उनको भी ऐसे लॉन्ग टर्म टेन्योर वाला लोन नहीं चाहिए होता है, तो 7-8 साल का लोन मिलता है उनको, उनके लिए 2 साल मैटर्स अ लॉट। Okay. So अभी हम लोगों को अगर from the perspective clients को approach करना हो तो probably real estate, manufacturing and LRD भी auto कर सकते हैं, LRD भी कर सकते हैं, LRD कर सकते हैं इसके अंदर। वाओ, LRD कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? LRD में सिर्फ एक ही चैलेंज है कि जो अभी 6 महीने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैपिटलाइज हो रहा है ना, हाँ, वो भी बहुत मोटा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपके LRD में भी अभी जो टेनेंट्स हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको रेंट तो पूरा पे करने वाले नहीं है, क्योंकि फुटफॉल आ नहीं रहा। मतलब ऑब्वियसली LRD जाना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिफिकल्ट हो सकता है। LRD में भी 2 चीज है भाई, एक मॉल का है, एक ऑफिसेज का है। तो मॉल वाले में चैलेंजेस है, मॉल वाले में चैलेंजेस है, ऑफिसेज वाले में चैलेंजेस नहीं रहेंगे। Any other questions or queries? एक बार प्लीज आप रिवाइज प्लान दोबारा शेयर कर देना। We will definitely look at it and anything else we'll definitely come back to you on it. ठीक है सोनल जी। So let's conclude the session. Thank you respected members for joining this session. Thank you so much Sudarshan. Right. And do come up with your queries if you do have any. We would be happy to get it resolved.